जब हम मसीह यीशु को ग्रहण किया, हमारे जीवन में एक 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 जीवन के एक नया क्या है, नया डायरेक्शन, नई दिशा खोल गई है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲା ହୋଇଅଛି। पहले हम सांसारिक लोग थे, ଆଉ ଆଗରୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଥିଲୁ, लेकिन हम अभी प्रभु में ज्योति है। ଆଉ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। और एक विशेष पदवी हमारे जीवन में मिलते हैं, वो पदवी है हम कलीसिया के अंग बन गए हैं। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପଦ ବା ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ମିଳିଛି କି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ। तो देखो, ये एक नया शुरुआत है। ଏହା ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। पहले हमारे जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं था, कलीसिया मंडली का अनुभव नहीं था। ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକତ୍ର ହେବା କୌଣସି ଅନୁଭବ ନଥିଲା, लेकिन प्रभु की बुलाहट क्या है, कलीसिया में अंग होकर हम प्रभु में आगे बढ़ना है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଅଟେ କି ଆମେ ମଣ୍ଡଳରେ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକତା तो ରହିଅଛି। हम बच्चों को देखते हैं, वैसे है वे लोग आगे बढ़ते हैं। 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସାନ ସାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ 12, 13, 15 ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗତି କରି କରି ଯାଆନ୍ତି। तो प्रभु ये चाहते हैं कि एक स्थानीय कलीसिया प्रभु में एक साथ मिलकर एकता में, प्रेम में, प्रभु में आगे बढ़ना है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। तो हम हमारे ये नए पदवी के बारे में आज ध्यान देंगे। ଆଉ ଆମେ ନୂତନ ସେଇ ପଦ ବିଷୟରେ ବା ସେ ଟାଇଟଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। वो पदवी क्या है? कलीसिया का अंगत। ଆଉ ସେ ପଦବୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ठीक है, हम एफिसियों की पत्री 2 अध्याय का ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19 to 22। ଆଉ 19 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय ତାର 19 19 ରୁ 19। हाँ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ପଢ଼ ତଳକୁ। 21। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଉଅଛ। ठीक है, तो इधर क्या लिखा है? पहले तुम लोग बाहर थे, अंधकार में थे, परमेश्वर के साथ कोई संबंध तुम्हारे जीवन में नहीं था। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାର ଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। लेकिन अभी 2000 साल के पहले यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा और सुसमाचार की फैलाव के द्वारा हम और तुम लोग अभी मसीह में हो। ଆଉ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ। तो 2000 साल से पूरा संसार में कलीसिया फैल जाती है। ଆଉ 2000 ପୂର୍ବେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। तो लेकिन इधर लिखा है कि ये कलीसिया एक आत्मिक मंदिर है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। लेकिन ये पवित्र मंदिर कैसे बनाया है? ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି? हम लोग कैसे घर बनाते हैं? ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଘର ବନାଇଥାଉ? हमारे मन में ऐसे बोलने में घर नहीं बनाया जाता है। ଆଉ ମନରେ ଭାବିକି କହିଲେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। हम है ना, नींव डालना है, पत्थर शायद खरीदना है, नहीं तो ईंट बनाना है,
और हम ऊपर ऊपर लगाकर छत लगाकर घर बनाता है। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଥର ଗଡ଼ି ବା ସିମେଣ୍ଟ ବା ଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରେ କରି ଆମେ ଛାତକୁ ପକାଇଥାଉ। लेकिन देखो हमारे घर कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, का मतलब डजंट ग्रो। ଆଉ ଘର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ନଥାଏ ଛାତ ପକାଇଲା ପରେ। एक बार हम बनाया उसी रीति में ऐसा खड़ा होता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ବନାଇଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ସେମିତି ଆକାର ରହିଯାଏ। लेकिन कलीसिया आत्मिक मंदिर होने के कारण क्या होती है, वो आगे बढ़ती है। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ସକାଶେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଗ୍ରସର କରେ। अर्थ क्या है, ये जीवित मंदिर है। କାହିଁକି ତା ଜୀବିତ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। क्योंकि कलीसिया के अंग कौन है, मनुष्य है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗ କିଏ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। और कलीसिया के सिर कौन है, यीशु मसीह है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। और यीशु मसीह जीवित है, हम भी जीवित है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟୁ। तो ये आत्मिक मंदिर ऐसे ऐसे हर साल में आगे 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 बढ़कर प्रभु की इच्छा तक आगे बढ़ना है। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଗ୍ରସର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଉ। तो हम जानते हैं कि हम बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन देते हैं। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥାଉ। तो 3 साल के बाद 4वीं में। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 4 କ୍ଲାସରେ ଆସେ। तो वैसे हम भी प्रभु में आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ते हैं कलीसिया आगे बढ़ती है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସକାଶେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। आप लोग समझते हैं मेरी बात? ବୁଝୁଛନ୍ତି? देखो थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण विषय। ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। देखो एक बच्चा पैदा होने के बाद हम नहीं बोलते देखो बच्चा अभी है ना परिपक्व हो गए और है ना का मतलब ग्रोन अप। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କହିନୁ କି ଗୋଟେ ମେଚ୍ୟୁର ବା ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକ ଅଟେ, ୟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। तो हर कलीसिया के लिए अवसर है प्रभु में आगे बढ़ सकती और शायद ऐसा छोटा छोटा होकर है ना ऐसे रख सकते। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। लेकिन ये विषय हम थोड़ा डिटेल रीति में है ना थोड़ा विस्तृत रीति में देखने के पहले हम 5 मिनट हमारा पुराना जीवन को भी हम देखना है। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବେ ଆମର ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା तो ରହିଅଛି। हम पूछना है हम पहले कौन थे। ଆମେ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆମେ କିଏ ଥିଲୁ ପୂର୍ବେ। 5 साल के पहले 10 साल के पहले हम कौन थे। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ କିଏ ଥିଲୁ। तो 11 में लिखा है, ଆଉ 11 ଲେଖାଯାଏ। 11 से 13 तक। ଆଉ 11 ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥକ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜା ସତ୍ତ୍ୱ ରହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। 13 देखो କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ठीक है। तो इधर देखो, इधर एक दो ग्रुप है ना, 2 ग्रुप के बारे में लिखा है। ଆଉ 11 ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ସମୂହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। एक समूह है इस्राएल जो परमेश्वर के लोग है। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ବା ଗୋଟେ ସମୂହର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। और दूसरा ग्रुप ज्यादा बड़ा है लेकिन उसमें परमेश्वर के जन कोई भी नहीं, वे विजाती है। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୂହରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଜାତି ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। और परमेश्वर किसके साथ है? ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି? पुराना नियम में सिर्फ इस्राएल के साथ है। ଆଉ ପୁରାନା ନିୟମର ଅନୁସାରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। तो उत्पत्ति का 12 अध्याय में जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, उसी समय से परमेश्वर इस्राएल जाति के साथ है।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। और जिसके पास समय है ये पढ़ सकता है उत्पत्ति का 11 अध्याय में प्रलय के बाद क्या होता है और कैसे परमेश्वर ये भाषा को का मतलब स्प्लिट करके भिन्न भिन्न करके लोगों को का मतलब दूर देश में पहुंच जाते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ପରେ ସେ ଭାଷାର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ି ହୁଏ ଆର ଏଇ ଭାଷା ପରସ୍ପରକୁ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। तो उस समय के बाद परमेश्वर के पास एक छोटा झुंड है जिसको परमेश्वर आगे बढ़ाया। आज भी वे लोग हैं जिसको हम इस्राएल जाति कहते हैं। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମୂହ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଗଲେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, सब लोग जीते हैं, सब लोग के पास पैसा है, काम है, सब है, लेकिन परमेश्वर से अलग हुए लोग थे। ଆଉ ତାଙ୍କ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। तो देखो इसलिए 11 में लिखा है तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, यू आर जेंटाइल्स। ଆଉ 11 ଲେଖାଯାଏ ତମେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ और खतने वाले नहीं। ଆଉ ତମେ ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ଥିଲ। कारण क्या है कि परमेश्वर के जन कथना करना था, तो जो कथना नहीं करते हैं वे लोग परमेश्वर के नहीं। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସୁନତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସୁନତ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। और 12 में लिखा है तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। ଆଉ ତୁମମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜା ସ୍ୱତ ରହିତ ହୋଇଥିଲ। देखो पुराने नियम में मसीह को हम कहाँ देखते हैं? ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥାଉ? तो मेरा सवाल था पुराने नियम में मसीह कहाँ है? ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? लेकिन उत्पत्ति का 3 अध्याय में परमेश्वर आदम से वादा किया मैं एक स्त्री की संतति दूंगा, उसके द्वारा ये सर्प का सिर का कुचल डाला जाएगा। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଦମକୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଂଶ ଜାତ କରିବୁ, ସେ ସର୍ପର ମସ୍ତକ ଗହିଟାକୁ ସେ କଣ କରିବ? ଆଘାତ କରିବ। लेकिन ये अन्य जाति लोग परमेश्वर से अलग होने के कारण परमेश्वर उसी प्रॉमिस को वायदा को इस्राएल को दिया। ଆଉ ସେମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଇଦେଲେ। तो मरियम की संतति होकर यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? मरियम की संतान होकर यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? ଆଉ ମରିୟମର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? इस्राएल में, है ना। एक यहूदी था यीशु मसीह। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଥିଲେ। तो देखो बाकी लोग के लिए मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है। मसीह का मतलब उद्धार करता, पूरी मानव जाति पाप में है, लेकिन अन्य जातियों के लिए उद्धार करता नहीं, है ना, त्राण करता नहीं है। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣୁ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରତା ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। और 12 में लिखा है कि प्रतिज्ञा की वाजाओं के भागी न थे। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଅଂଶୀଦାରୀ ନଥିଲେ। तो परमेश्वर अब्राहम के साथ वाजा बांधा ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ और मूसा के द्वारा वाजा बांधा, ଆଉ ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ दाऊद के साथ वाजा बांधा। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। लेकिन इंडिया के लोग, अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग, कोई भी राष्ट्र भी हो, ये सब लोगों के लिए ये वाजाओं में कोई पार्ट सहभागिता नहीं था। ଆଉ ଭାରତ ହଉ, ୟୁରୋପ ହଉ ବା ଆଫ୍ରିକା ହଉ, ଏ ସେଇ ଅଂଶରୁ ସେମାନେ ଭାଗିଦାର ନଥିଲେ। कारण क्या है? अब्राहम की संतान के लिए ये सब वाजाएं हैं। କାହିଁକି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ବା ନିୟମ ଥିଲା। लेकिन 13 में क्या लिखा है? ଆଉ 13 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? बट अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, बाहर थे, मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ गए हैं। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। मतलब क्या है? जो मन फेर कर
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर परमेश्वर की संतान बन गए है, अभी परमेश्वर के पास आ गए हैं। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। तो देखो हमारे जीवन में हम ये समझना है, पहले मैं परमेश्वर के साथ मेरा जीवन में कोई संबंध, कोई ज्ञान, कोई चिंता कुछ भी नहीं थे। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି ଆମେ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर हमें प्रभु यीशु में चुन लिया है। इसलिए 2026 में शायद कई साल के पहले आप सब लोग प्रभु में आए हैं। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛୁ। शायद हम सोचेंगे हम अच्छे लोग थे इसलिए प्रभु हमें लाया। ଆମେ ଭାବିପାରୁ କି ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। वास्तव में पूछना चाहता हूँ कौन अच्छा था ଆଉ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ और आज कौन अच्छा है? ଆଉ ଆଜି କିଏ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? सब लोग पापी है। ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାପ କରିଛନ୍ତି। गीत गाने का समय कलीसिया में हम बहुत पवित्र लोग हैं, लेकिन बाहर हम इतना पवित्र नहीं हैं। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଅତି ପବିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ, ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମର ପାପମଗ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଏ। तो हमारे उद्धार के बारे में हम पीछे देखकर बोल सकते हैं, देखो ये परमेश्वर की करुणा है। ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ପଛକୁ ଦେଖି କହିପାରିବା ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। और परमेश्वर का अनुग्रह का कारण है मैं प्रभु यीशु मसीह में आया। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାରଣ ହେଇଥିବା ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛି। इसलिए एक भक्त का मतलब एक विश्वासी के जीवन में प्रभु के लिए हमेशा धन्यवाद की जरूरत है। कारण क्या है? हम है ना दूसरी मृत्यु नरक से बचाए गए लोग हैं, ये प्रभु की करुणा है। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଲୋକ ହେବା ସକାଶେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। पहले हमारे ऊपर एक अधिकारी था, है ना, कौन है? शैतान। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଶୈତାନ। लेकिन आज हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। और नरक और स्वर्ग में कितना फर्क है बीच में? ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନରକରେ କେତେ ତାର ଲମ୍ବା ଅଛି। और अंधकार और ज्योति के बीच में कितना फर्क है? ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ତାର ଦୂର ଅଛି। और शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान के बीच में कितना फर्क है? ଆଉ କେତେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ଦୂର ଅଛି। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ तो ये हमारा पहले अनुभव था। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଥିଲା। तो मसीह में ये आने के पहले ये हमारा जीवन था। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିଲା। ठीक है, तो समय के कारण मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, हम 19 फिर पढ़ेंगे। ଆଉ 19 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। तो देखो अभी परमेश्वर अपना घराने में हमें क्या किया? अडॉप्ट किया, हमें ले पालक पुत्र और पुत्रियों के जैसे हमें अपना घर में लाया है। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी आप ये हॉल के अंदर है बाहर है? ଆପଣମାନେ ଏଇ ହଲର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? शायद मैं सोचता हूँ कई लोग अपना मन में बाहर है, ଆଉ अंदर। କେତେ ଲୋକ ମନରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ठीक है, सब लोग अंदर बैठना। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। तो देखो हम परमेश्वर के घराने के अंदर है, बाहर नहीं। पहले बाहर थे लेकिन अभी अंदर है। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଭିତରେ ଅଛୁ, ନାହା କି ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ। देखो पवित्र लोगों के संगी का मतलब साथी है। ଆଉ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ଅଟୁ। अभी इस्राएल के जैसे परमेश्वर के लोग हैं, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପରି ଏବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ये हम विश्वास करते हैं। ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି और सिर्फ विश्वास नहीं, मैं सोचता हूँ अब सबके जीवन में ये उद्धार का अनुभव है कि पापों से है ना बच जाकर अभी प्रभु में ज्योति है। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଛି ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ଅଟି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ। अभी देखो बाइबल संपूर्ण सत्य है।
बाइबल संपूर्ण सत्य अटे मेरे मन में कोई शंका नहीं, मो जीवन में कौनसी द्वंद्वर विषय ना लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम ये भी समझना है कि मेरे जीवन में ये वास्तव है, सत्य हो गया है। आ जेतेबेले आमे बाइबल को पढ़ो यहाँ मध्य आमे बुझिबार अछि कि से सत्य अटे वास्तव अटे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वास्तव में यह अनुभव आपके जीवन में है? कौन यही प्रकार अनुभव आपण मान को जीवन रे अछि कि? श्योर? ओके, ठीक है। और 20 में लिखा है, ये अनुभव के लिए एक प्रोग्राम, एक बड़ा प्रक्रिया परमेश्वर चलाया है। आउ ए अनुभव पाई गोटे प्रक्रिया प्रभु जारी करिसंती। तो इधर लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। तुम मान को प्रेरित भाववादी मानकर भित्तिमूल ऊपर निर्मित होइछ, ख्रीष्ट यीशु स्वयं सेतिर कोणर प्रधान प्रस्तर। तो इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह हमारा उद्धार के लिए जो कुछ करना है सब कुछ करके, पूरे करके कहाँ चले गए? स्वर्ग पर चले गए। आ जहाँ भी परित्राण निमंते कार्य करिवार थिला ख्रीष्ट से सब विषय संपूर्ण करी से स्वर्ग को जाइछंती। कोई संदेह है इस विषय पर? किछि आशंका अछि कि? हम जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हमें जीवित परमेश्वर बा ख्रीष्टन को आराधना करो। और लेकिन प्रभु क्या आज्ञा दिया? आओ प्रभु कौन आज्ञा देले? हम मार्कुस का 16, 15 और 16 पढ़ सकते हैं। मार्को पुस्तक 16 का 15 और 16 अध्याय तार 15 और 16। पुणी जीसु से मान को कहिले, तुमने समुदाय जगत को जाई समस्त मानव जाति निकटरे सुसमाचार घोषणा करो, जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो, किंतु से अविश्वास करे से दंडाज्ञा पाइबो। तो देखो, यीशु मसीह ये आज्ञा देकर स्वर्ग चला गया। आओ जीसु ख्रीष्ट यही प्रकार आज्ञा दी से स्वर्ग को नीत होले। पूरा संसार में सुसमाचार प्रचार करना है और जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। आओ समस्त मानव जाति निकटरे सुसमाचार घोषणा करा जाओ और जिन्होंने विश्वास करियो समान को बाप्तिजित दिया जाओ। तो प्रेरितों की दूसरा अध्याय अब बाद में देखिए, अभी देखने का समय नहीं। प्रेरित दूसरा अध्याय में पहली बार है ना, चेलेम का मतलब प्रेरित खड़े होकर इस्राएल लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार किया। आओ प्रेरित 2 अध्याय रे प्रथम थर पई प्रेरित माने समाने परमेश्वर को सुसमाचार को इस्राएल को मान को निकट रे घोषणा कले। और उधर लिखा है, उसके बाद 3000 यहूदी लोग उसी दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया के साथ जुड़े। आउ से प्रकार लिखा जाए, से माने यहूदी लोक हेले मध्य से माने विश्वास करी ख्रीष्टन को ठारे से माने मंडली सहित 3000 लोक संयुक्त हेले। और उस अध्याय में बाद में लिखा है, और लोगों को प्रभु हर दिन कलीसिया के साथ जुड़ाता था। आउ से 2 अध्याय आउ लिखा जाए कि सही प्रकार प्रक्रिया अनेक लोक मंडली रे से माने जड़ित होई जाउथिले। तो आज भी सुसमाचार के द्वारा लोग विश्वास करता है। आज मध्य से परमेश्वर को वाक्य व सुसमाचार द्वारा लोक माने विश्वास करंती। मैं 1998 में 1998 में विश्वास किया। शायद आप लोग 2010 में, 15 में, 18 में विश्वास किए होंगे। आउ सार पूर्व ही से कौन करथिले विश्वास करथिले और माने 18 19 रे से माने विश्वास करथिबे। तो देखो, ये प्रक्रिया के बारे में तो लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर ये कलीसिया बनाई जाती है। आ प्रेरित और भविष्यवक्ता मन को द्वारा भित्तिमूल स्थापन करा जाय अछि। मतलब क्या है? यीशु मसीह आज्ञा को किसने आगे बढ़ाया? आओ ख्रीष्टन को आज्ञा को किए आगो को बढ़ाइले? पतरस, यूहन्ना, थोमा, है ना। इसलिए पूरा संसार में लोग विश्वासी बन गए। आओ परमेश्वर को शिष्य माने तंकर आज्ञा को आगो को बढ़ाया द्वारा अनेक लोग परित्राण को पाइले। और विश्वास करने वालों को ये प्रेरित लोग क्या किया? आ विश्वास करिथिबा लोक मान को प्रेरित माने कोन कले? प्रेरितों की पत्री, प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय का 42 पढ़ेंगे। प्रेरित 2 तार 42।
ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। देखो ये कलीसिया के चित्र है। ये प्रेरित लोग है ना प्रभु की शिक्षा दे रहे थे और मिलकर कलीसिया के रूप में प्रभु की आराधना और प्रभु से प्रार्थना और प्रभु की मृत्यु का याद है ना प्रभु भोज सब कर कर आगे बढ़ते थे। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଟେ କି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟତାର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତକୁ ଆଉ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢୁଥିଲେ। तो देखो यीशु मसीह एक क्लियर प्रोग्राम बनाकर पृथ्वी छोड़ ऊपर गया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସେ संपूर्ण କରି से स्वर्ग को जाइछंती। तो ये प्रोग्राम का शुरुआत का है ना आरंभ और प्रयत्न और परिश्रम ये प्रेरित और भविष्य का मतलब उनके साथ जो लोग थे वे लोग करते थे। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟର ଯୋଗଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। अभी देखो पतरस ये अभी नहीं है, पौलुस नहीं है, लेकिन कितने पूरे संसार में कितने विश्वासी लोग हैं। ପିତର ପାଉଲ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ଏଇ ସଂସାର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। लेकिन देखो ये कलीसिया की शिक्षा और संगति प्रार्थना आराधना सब के लिए एक स्पेशल और एक विशेष आधार है, नींव है जो मसीह यीशु है। ଆଉ ସେଇ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ସବୁର ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। इधर लिखा है जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। ଆଉ ସେଇ କୋଣର ପ୍ରସ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। अब इसका अर्थ क्या है? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? मेरा बचपन में मेरा मन में याद है कि ये ना पत्थर की मिस्त्री था। ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେମାନେ ପଥର ମିସ୍ତ୍ରୀ ग्रेनाइट स्टोन ଆଉ ପଥର ସେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ और ईंट बनाने वाला मिस्त्री था ଆଉ ଇଟ୍ बनाଇବା ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ और ये प्लास्टरिंग करने वाला वो अलग मिस्त्री था। ଆଉ ଏ ପ୍ଲସ୍ତର କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା ମିସ୍ତ୍ରୀ तो ଥିଲେ। वो जब मेरा पापा ने एक घर बनाया मैं उनके साथ था तो उधर मैं ये पत्थर का मिस्त्री का काम बहुत है ना बहुत ज्यादा देखा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଅଛି। तो पहले थोड़ा नींव के लिए ना भूमि खोद कर लगभग 1 फीट नीचे ये पत्थर डालते थे। ଆଉ ସେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ସେମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। और जमीन के ऊपर लगभग 1.5 फीट 1.5 और 2 फीट ऊपर भी ये पत्थर था। ଆଉ ସେ ଜମିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଫିଟ ସେମାନେ ପଥରକୁ ଉଠାଉଥିଲେ जिसको हम बोलते हैं ये ना क्या है बुनियाद फाउंडेशन ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଭିତ୍ତିମୂଳ କହିଥାଉ और हिंदी में नींव बोलते हैं। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। अभी उस घर अभी भी है लगभग 40 साल हो गया, कोई है ना कोई शेख कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका नींव बहुत स्ट्रॉन्ग रीति से बनाया है। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଭଲ କି ସେ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। लेकिन उस समय में देखा कि कैसे ये मिस्त्री काम करता है। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ वो କରିଥିଲା। बहुत पत्थर है, छोटा है, बड़ा है, उसमें उनमें से सबसे बेस्ट है ना सबसे अच्छा शेप पत्थर को ये कोना में डालता है। ଆଉ ପଥର ଗୁଡା ଅନେକ ଥିଲା ମାତ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ପଥର ଆଣିକି ସେ କୋଣରେ ସେ ରଖି ଦଉଥିଲା और उसको करेक्ट है ना करेक्ट एंगल में डालकर उसके साथ साथ दूसरे पत्थरों को अरेंज करता है। ଆଉ ସେ ଭଲ ସାଇଜ ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଗେପ୍ ଜାଗାରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। तो देखो ये एक कोना है, कोना का यूज क्या है उसके अनुसार ये साइड और ये साइड भी ठीक होना चाहिए। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ କୋନାକୁ ସମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମାନ ବିଷୟ ଏଇ ପାଖରେ ଦେବାର ଅଛି। तो देखो ये एक प्रतीक है कि चित्र है। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଟେ। तो वास्तव में पौलुस यहाँ हम क्या कहते हैं? ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? यीशु मसीह कोने का पत्थर है। ଆଉ ସେ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ବା ପଥର ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। यीशु मसीह हमारे विश्वास का आधार है, केंद्र है। ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। हमारा उद्धार का कारण यीशु मसीह का जीवन है। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
और जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में, कैसे आगे बढ़ना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसे। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। समझ लिया? ବୁଝୁଛନ୍ତି? तो इब्रानियों के पत्र में 12 पढ़िए, 12 ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12 1 और 2। 1 ଆଉ 2 ପଢିବ। 1 ଆଉ 2। ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। अभी देखो इसमें बहुत है, लेकिन सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहता हूँ इधर से, हम किसकी ओर ताकना, किसकी ओर हम देखना है। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12 ତାର 1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କରି ରହିବାର ଅଛି। लोग बोलते देखो मेरे पास ऐसा है, ଆଉ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୋର ପାଳକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, हमारी गली से हम एक बहन ऐसा है, ଆଉ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଟେ, और एक लीडर है उधर वो ऐसे करते हैं। ଆଉ ସେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସେ କରନ୍ତି। लेकिन हमारी बुलाहट में प्रभु यीशु मसीह पर ही देखने के लिए हमें बुलाए हैं। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଚାଲବାର और ଅଛି। किसी व्यक्ति पर हम देखने में और उनको अनुकरण करने की जरूरत भी नहीं है। ଆମେ କାହାକୁ ବି ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। लेकिन मैं सोचता हूँ जो यीशु मसीह पर देखते हैं, दूसरे लोगों से सीख, है ना, अच्छा अच्छा उदाहरण, उनके जीवन से हम लेसन हम लेंगे। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ତା ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। लेकिन हर एक विश्वासी का लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलन, मेरा जीवन मिल जाना चाहिए। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଇଚ୍ଛା ରହିବାର ଅଛି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିବା। तो देखो ये खोने का पत्थर है यीशु मसीह। अर्थ क्या है? हम भी यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर की संतान है, इसलिए यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में भी आना चाहिए। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବାର ଅଛି। ठीक है, हम हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य, द लास्ट गोल और द फाइनल गोल क्या रखना चाहिए? ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରଖିବାର ଅଛି? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना। ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବା ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି। तो बच्चों को हम स्टडी देते हैं, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଦଉ, खेती में काम करते हैं, ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ और କରାଉ, मजदूरी काम करते ଆଉ हैं, କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଉ, बिजनेस चलाते हैं। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଖାଉ। लेकिन ये सब में हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। नहीं तो हम और, है ना, सांसारिक लोग के बीच में क्या फर्क है? ଆଉ ସାଂସାରିକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଅଛି? उनके लिए कोई परमेश्वर नहीं, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। हमारे लिए परमेश्वर है, लेकिन हम ऐसे नहीं मानते हैं। ଆମର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମାନୁନୁ। तो देखो यीशु मसीह को देखने पर हमारा जीवन बदल जाता है। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବଦଳିଯାଏ। संसार को देखने पर हमारा जीवन पीछे जाता है। ଆଉ ସଂସାରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। तो 2026 में अभी भी हम शुरुआत में हैं। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଅଟୁ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये 2026 में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति, ये है ना, ये हॉल आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इधर के विश्वासी लोग प्रभु में आगे बढ़ना है। ଆଉ 2024 ମସିହାରେ ଏହା ମୁଁ ବାଞ୍ଛା କରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ଭାବରେ ବଢନ୍ତୁ। ठीक है, हम 21 देंगे। इसमें सारी रचना, ये मंदिर के बारे में लिखा है कि यह सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ
प्रभुଙ୍କ ठारे गोटे पवित्र मंदिर स्वरूपे वृद्धि पाउछि। तो इधर क्या लिखा है? कौन लिखे देखो पुराने नियम में पहले परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर तंबू के अंदर अधिक पवित्र स्थान में उपस्थित था। आ पुरातन नियम रे स्तंभ रे प्रभु आसुथिले आ अति पवित्र स्थान रे तांकर उपस्थिति रहुथिला। किसी ने पढ़ा है बाइबल में उसके बारे में? से विषय रे पढिसंती कि एक्सोडस का मतलब यात्रा पुस्तक रे। हाँ, ओके। उसके बाद सलोमो ने क्या किया? एक मंदिर बनाया और उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में अति पवित्र स्थान में थी। आ सोलोमन तापरे से तंबूर गुडे मंदिर तैयार कले आ से मंदिर रे परमेश्वर को उपस्थिति रहुथिला। लेकिन अभी परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? आ एबे परमेश्वर को उपस्थिति क्यों जगह रे अछि? हमारे अंदर। यरूशलेम में आज मंदिर नहीं है। आज जेरूशलेम रे कोनोसी मंदिर नाही। पहले कोरिन्थी 3:16 पढ़ सकते हैं? आ प्रथम कोरिन्थीय 3:16 पढ़ी परिबा। तो माने कोन जानो नाही? तुम्हें माने कि जानो नहीं जे तुम्हें माने ईश्वरन को मंदिर आ ईश्वरन को आत्मा तुमान को अंतर रे वास करंती। देखो तुम नहीं जानते हो, ये एक सवाल है। डोंट यू नो? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर है ना, हमारे हृदय नहीं, योर बॉडी, तुम्हारे शरीर परमेश्वर के मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर हो। आउडे एडा उडे प्रश्नवाचक सेंटेंस अटे। तुमे जानिनो कि जे तुमाने ईश्वरंकर मंदिर आ ईश्वरंकर आत्मा तुमान ठारे वास करंती। तो एक विषय बहुत स्पष्ट है, हर विश्वासी है ना, पवित्र परमेश्वर का, उनका शरीर पवित्र परमेश्वर का मंदिर है। और कौन अंदर वास करता है ना? पवित्र आत्मा हमें कोई किराए नहीं देता है, हम उनको कोई खाना नहीं खिलाते हैं, लेकिन बाइबल के द्वारा, अनुभव के द्वारा हम जानना है, समझना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आओ गोटे विषय स्पष्ट छे कि गोटे विश्वासी को भितरे ता परमेश्वरंकर मंदिर अटे आ पवित्र आत्मा से जगह रे तांकर अंतर रे वास करंती। लेकिन इधर एक नया मंदिर के बारे में लिखा है। आओ एफिसियो पुस्तक रे नया मंदिर विषय लिखा जाए। ये कौन सा मंदिर है? एई मंदिर क्यों मंदिर अटे? जब विश्वासी लोग प्रभु में मिलकर आते हैं। आ जेते बेले गोटे विश्वासी मिलित भाव रे गोटे जगह रे एकत्र हुअंती। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम में, या ना, यीशु मसीह का नाम कैसा है? सबसे ऊंचा नाम, सबसे सर्वशक्तिमान नाम है। आओ ख्रिस्टंकर नाम सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी बा उच्चतम नाम अटे। उस नाम में इकट्ठे होने पर क्या होता है? वो एक मंदिर के जैसे है। आओ से नाम रे जितबेला में एकत्र हो से समय गोटे मंदिर उत्पन्न हुए मंदिर। तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर क्या करते हैं? हर एक अंग को ये ना आपस में ये ना कनेक्ट करते हैं, का मतलब जॉइन करते हैं। आओ एई मंदिर प्रत्येक लोगों को संलग्न करे बा जड़ित करे। देखो हम शरीर का उदाहरण हमारे सामने है। आओ शरीर गोटे उदाहरण हमें देखि पारे। मेरा हाथ मेरा सिर से कनेक्टेड है, हमर हाथ मोर मस्तक सहित संलग्न अटे। और मेरे पैर और मेरा ये ना छोटा अंगुली भी मेरा सिर से कनेक्टेड है। हमर छोटो अंगुली मध्य मोर मस्तक सहित जड़ित तो अटे। हमारे शरीर में बहुत अंग है, लेकिन एक शरीर है। हमर शरीर अनेक अंग प्रत्यंग अछि, मात्र गोटे शरीर अटे। तो कलीसिया में प्रभु की इच्छा क्या है कि हर विश्वासी एकता में प्रेम में आने के समय उधर सिर उपस्थित होता है। आओ जेते बेले हमें मंडली एको प्रेम अविश्वास रे एकत्र हो से जगह रे मस्तक बा ख्रिस्ट उपस्थित होंती। तो देखो हम पवित्र मंदिर है, लेकिन सबके ऊपर कौन है? यीशु मसीह। हमें पवित्र मंदिर अटो, मात्र अमान को ऊपर यीशु ख्रिस्ट अटंती। लेकिन हमारा उद्धार, हमारे बढ़ोतरी सब किसके कारण है? यीशु मसीह के कारण। अमान को उद्धार, अमान को परित्राण का द्वारा अटे, ख्रिस्ट को द्वारा अटे। तो देखो 22 में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ताहांकोठरे तुम माने मध्य ईश्वर को आत्मा निवास निमंते एकत्र निर्मित होइछ।
देखो कलीसिया प्रभु में आगे बढ़ती है तो और लोग कलीसिया में आएंगे। आओ जदि ख्रीष्टको ठारे मंडली बढ़ुची ताले अनेक विश्वासी मंडली को मध्य को आसीबे। कारण क्या है, इधर सिर्फ कलीसिया में और कलीसिया के विश्वासी लोगों के जीवन में ज्योति है, ये ज्योति को देखकर बाहर से लोग इधर आएंगे। आओ एई जगार विश्वास माने जदले ज्योति रे थिबे अन्य लोक माने ए ज्योति को देखि कि ख्रीष्टन को ठारे आसीबे। तो देखो इधर एक वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में लिखा है तुम भी, का मतलब यू ऑल्सो, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, का मतलब कंटिन्यूअसली अभी ये प्रक्रिया चल रहा है। अब या वर्तमान गुडे व्याकरण लिखा जाय छी कि तुमे माने मध्य ईश्वरंकर आत्मा निवास निमंते एकत्र निर्मित हेउअछो। तो हम ये बात कैसे समझना है, एई विषय को कि प्रकार बुझिबा? हम ऐसे समझेंगे, शायद हम अभी दूसरा स्टैंडर्ड में हैं। हमें 2 क्लास रे अछु अभी हम क्या करना है, स्टडी करना है, एग्जाम देना है, तीसरा में जाना है। अब हमें कोन करे पढ़वार अछि आ परीक्षा देवार अछि आ 3 नंबर क्लास रे जीवा। और तीसरा से हम 5वीं और 10वीं ऐसे आगे बढ़ने के लिए हम इच्छा करना है। आ एई प्रकार में आगु को बढ़िया पई इच्छा और परीक्षा देबा को पड़िबो। तो कैसे करेंगे? कि प्रकार करिबा? प्रार्थना करिबा, वचन वाक्य और संगति आओ सहभागिता और एक साथ काम करना है। ये बहुत मुख्य विषय है। और ए मुख्य विषय में मिसी मिली काम करिबार अछि। अभी देखो जब मेरे हाथ में इधर उठाने के लिए कोशिश करता हूँ, ये इधर आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। आ जदि हम मोर हाथ यार मु करिया पई चाहे आ हाथ जदि यार आसे ता गुडे द्वंद्वर विषय हटे। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम मिलकर एक आत्मिक मंदिर के जैसे परमेश्वर की आराधना करना है। हमें समस्त मिशी आत्मिक मंदिर स्वरूपे प्रभु का आराधना और करिबार अछि। परमेश्वर की इच्छा क्या है, जब टूटीगुड़ा की कलीसिया इकट्ठी होती है, मैं उनके बीच में आना चाहता हूँ। आओ जितेबेले ठोटीगुड़ा मंडली एकत्र होंती सही जगह रे मु आसीबा पई प्रस्तुत अटे। देखो हर धर्म में देखने के लिए कुछ है। आओ अनेक धर्म रे किछ देखिबा पई गोटे चित्र रही अछि। देखने के बिना, है ना, कोई धर्म नहीं है। आओ बिना देखिबार कोनोसी गोटे धर्म नाही। कई धर्म ऐसा है, कुछ चीज बनाए रखे, उसमें हम ऐसे, है ना, रोटेट कर सकते हैं, उसमें टच कर सकते हैं, उसमें सब कुछ हम कर सकते हैं। आ किसी धर्म रे गोटे जगह रखा जायथिबो से जगह में बोली परिबा छुई परिबा। कई लोग के हाथ में क्या है, माला है, बुद्धिस्ट लोग के हाथ में माला है, जिसके द्वारा हम ऐसे 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 करते हैं। आ से माने ए प्रकार माला धरि से माने जपंती। मैन हमारे शरीर के लिए कुछ एक्शन है, आ से माने शरीर पे किछि गोटे देखने क्रिया के विषय लिए अछि। देखने के लिए कुछ है, आ से माने देखिबा पई गोटे अछि। स्मेल करने के लिए ना, सुगंध, ये क्या है, बत्ती सब जलाते हैं, वासना नेबा पई मते किछि तांगर और रही। घंटी बजाते हैं। आ से माने घंटा मते बजा। समझ लिए, स्मेल है, देखते हैं, घंटी है। हाँ, अभी हम, है ना, किसके सामने है, किसी के सामने है। आ से माने देखिबारो बा छुईबारो बा स्मेल करिबार सब से जानती कि हमें कार गोटे सामने रही। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का अंतर्वास के कारण कोई चित्र या कोई बत्ती, कोई स्मेल, कोई गंडी, ऐसा कोई किसी की जरूरत नहीं है। काहे कि पवित्र आत्मा मानकर अंतर रहबा सकाशे कौनसी शारीरिक चिन्ह नहीं। देखो पुराने नए में मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। आप पढ़ना चाहिए, बोलने का समय नहीं, बहुत सुंदर रीति में बनाए रखे। लेकिन अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति को कोई देख नहीं सकते। आओ हमें पुरातन मंदिर को एक प्रकार सजावट रे हमें देखि परबा, हमें कल्पना मध्ये करि परबा नाही। मात्र अति पवित्र स्थान जेतेबेले परमेश्वर उपस्थित रहउथिला सही समय रे केही मध्ये देखि पारि न। और सिर्फ साल में एक बार महायाजक अति पवित्र स्थान के अंदर जाता था, लेकिन उधर भी सिर्फ क्या है, कुछ फर्नीचर के जैसे है, लेकिन परमेश्वर को नहीं देखता था। आओ वर्ष को गोटे थर महायाजक से अति पवित्र स्थान को जाउथिले, मात्र परमेश्वर को देखि पार नथे, ताकर किछि अद्भुत विषय को से महसूस करथिले। लेकिन अभी जब हम इकट्ठे करते हैं, प्रभु, है ना, पवित्र आत्मा की सहायता से हम देखने के बिना, स्मेल करने के बिना, है ना, सुनने के बिना हम प्रभु की आराधना कर सकते। हमें पवित्र आत्मा मानकर अंतर हेबा सकाशे बिना देखी, बिना वासना नहीं
आमे प्रभु को आराधना करि परिबा। देखो मैं शुरुआत से थोड़ा संक्षिप्त रूप में बोलना चाहता हूँ। किछि मो संकल्प विषय कहवा पय चाहे। तो 11 से 13 तक हम क्या देखा कि पहले हम अंधकार में थे, शैतान का वश में थे, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं थे। ଆଉ ଆମେ 11-13 ପଦ ଯାଏ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ଶୈତାନ ସହିତ ଥିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। लेकिन 19 से 22 तक हम क्या देखते हैं? ଆଉ 19 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ଦେଖିବୁ? हम अभी विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं, है ना, घर के लोग हैं। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ନାହୁଁ, ଏବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟୁ। और ये परमेश्वर हमें, है ना, सबको इकट्ठे करके प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। इसलिए यीशु मसीह कलीसिया की, है ना, ये प्रोग्राम हमें दिया है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। पहले पुराना नियम में इस्राएल, लेकिन नया नियम में कलीसिया। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ। आज परमेश्वर इस्राएल लोगों के बीच में नहीं है। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। परमेश्वर किसके बीच में है? ଆଉ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି? कलीसिया के बीच में। ମଣ୍ଡଳୀ। तो देखो हम कितने सौभाग्य लोग हैं। ଆଉ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଟୁ हम ଆମେ। बोलते हैं देखो पूरा प्रपंच का सृष्टिकर्ता, है ना, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता बन गया और वो हमारे साथ संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। तो ये एक फाउंडेशन है आज की ये शिक्षा। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟେ। तो वह हमें ये सिखाती है कि हमारे सामने एक दौड़ है, एक काम है, एक प्रोग्राम है। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଚେତନା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିବାର ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। तो ये यीशु मसीह का कलीसिया का प्रोग्राम चलाने के लिए हम सब लोग, है ना, व्यक्तिगत रूप में काम करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଉ ସମୂହ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो शायद हम व्यक्तिगत रूप में करेंगे लेकिन मिलकर नहीं करते हैं तो क्या फायदा है? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରୁଛୁ ଆଉ ମିଳିମିଶି କରୁନୁ ତାହେଲେ କିଛି फायदा ନାହିଁ। और दूसरा गलत क्या है? हम मिलकर सब कुछ करने के लिए रेडी है लेकिन हमारे जीवन के अंदर प्रभु की आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन की मनाई नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ମିଳିମିଶି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଆରାଧନା କରିବା ତ କୌଣସି फायदा ନାହିଁ। तो देखो पवित्र मंदिर के जैसे आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत जीवन में आत्मिकता, ଆମେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, व्यक्तिगत। ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। और दूसरा पैर क्या है? हमारे मिलकर, है ना, यानी एक सामूहिक रीति में भी हम आगे बढ़ते हैं। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ସମସ୍ତ ମିଳିମିଶି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ଭାବରେ तो ବଢିପାରିବା। व्यक्तिगत रूप, है ना, व्यक्तिगत जीवन का फल को हम इधर देखते हैं, इधर का फल को हम व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଳକୁ ଆମେ ସମୂହ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ସମୂହର ଫଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। और हम ये भी समझना है प्रभु कलीसिया में काम करने के लिए सबकी, है ना, सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट को मांगते हैं। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ମାଗନ୍ତି। कोई नहीं बोलना है देखो मैं क्या कर सकता, मैं गीत नहीं गाऊंगा, तो ऐसा नहीं बोलना है। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହିପାରେ ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାଗ ନେବି ନାହିଁ। सबके लिए अवसर है, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସୁଯୋଗ हम ରହିଛି। सब रेडी होने चाहिए ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। और प्रभु की इच्छा के अनुसार एक, है ना, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए हम जाएं। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। तो बात क्या है कि अभी देखो हमारे जीवन में हम जो जॉब करते हैं उनके लिए, है ना, 10 बजे से शायद 11 बजे से कितने बजे से भी हो, एक ऑफिस लाइफ है ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଟାଇମ ରହେ और फैमिली लाइफ है। ଆଉ ପରିବାର ସମୟ ଅଛି। बच्चों को हम कितने कितने घंटे पढ़ाई के लिए देते हैं? ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଆମେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଉ।
6 घंटे, लगभग 6 घंटे, है ना। 6 घंटे हम उनको स्कूल भेजते हैं हर दिन, का मतलब स्कूल का दिन। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପଠାଉ। अभी हमारे जीवन में एक और, है ना, के लिए अवसर है, कलीसिया के लिए मैं क्या करूँगा, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି। क्योंकि मैं भी अंग हूँ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। मेरे द्वारा प्रभु ये कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। तो कलीसिया के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। देखो, ये बात हम सोचना है और प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। और एक विषय है, बाकी बातें पुराना काल में लिखा, मतलब पास्ट टेंस में लिखा है, लेकिन लास्ट में वर्तमान प्रेजेंट टेंस में लिखा है कि हम इस विषय में आगे हर साल हर दिन आगे बढ़ना चाहिए। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। तो हम कैसे करेंगे? କେମିତି କରିପାରିବା? हम समर्पित करना है, ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। तो कौन हमें मदद करेगा? ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? कौन करेगा? କିଏ କରିବେ? पवित्र आत्मा, पवित्र प्रभु यीशु मसीह। यीशु तो देखो, क्रिस्ट। जब हम तैयार होता है, हम जब, है ना, उधर से हमारा घर से आने के लिए परिश्रम किया, प्रभु अनुग्रह की, इसलिए हम इधर हैं। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। तो वैसे जब आप समर्पित होते हैं, प्रभु काम करता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। और प्रार्थना भी करना जरूरी है। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। प्रभु हम सबको आशीष दे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ।